امریکی ٹیرف کا عالمی نفاذ شروع، بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو تجارتی ٹیرف میں خصوصی رعایت، پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر دیا جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف لگایا گیا۔ صادق آباد میں رات گئے کچے کے ڈاکوؤں کا پولیس پوسٹ پر حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ 40 ڈاکوؤں نے پولیس چوکی پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 1 ڈاکو مارا گیا۔ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم، تجمل، خلیل احمد اور غضنفر شامل۔ آئی جی پنجاب صادق آباد کے لیے روانہ۔ لاہور میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ، سی سی ڈی سے مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ شناخت 24 سالہ اویس اور 26 سالہ ارشاد کے ناموں سے ہوئی۔ 4 ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ میاں والی میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ، 2 ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ خیرپور اور میاں والی میں المناک حادثے، 2 بھائیوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ خیرپور میں ٹریلر نے قومی شاہراہ پر 4 مزدوروں کو کچل کر ہلاک کر دیا، 3 مزدور زخمی ہوئے۔ میاں والی میں موٹر سائیکل لوڈر رکشے سے ٹکرا گیا، موٹر سائیکل سوار 2 بھائی جاں بحق ہو گئے، 1 شخص زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ریلیف بھی تکلیف بھی، پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی، قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ انارکلی، لکشمی چوک، چبرجی میں بارش، اسلام پورہ، مزنگ، موہنی روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی رمجھم۔ منچن آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، فیڈر اسٹرپ ہونے سے متعدد علاقوں کو بجلی فراہمی معطل۔ اور پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کا جیت سے آغاز، پہلے میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 57 رنز کی اننگز کھیلی، ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 164 رنز ہی بنا پائی۔ محمد نواز نے 3، سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سائم ایوب مین آف دا میچ قرار پائے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے سب لوگ صدمے آئیں گے، سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا کہ جلد تحریک انصاف کا ایک خطرناک منصوبہ پھر منظر عام پر لاؤں گا۔ جو باتیں بھی میں نے کہی تھیں وہ آج سب کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جو ٹائم لائن دی تھی تمام چیزیں اس کے مطابق ہی ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مزید نااہلیاں بھی ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ بانی پی ٹی آئی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس، پی ٹی آئی کے 41 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری، مجموعی تعداد 50 ہو گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وارنٹ کراچی کمپنی میں درج مقدمے میں جاری کیے۔ سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور، اسد قیصر، سینیٹر شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر شامل۔ عدالت کا علیمہ خانم، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، راؤف حسن، مراد سعید، شیخ وقاص اکرم، کمال شوزب، شاندانہ گلزار کو بھی گرفتار کرنے کا حکم۔ شیر افضل مروت، عبدالقیوم نیازی، احمد نیازی، عاطف خان، شعیب شاہین، اعظم خان سواتی کے بھی وارنٹ جاری۔ 9 ملزمان کے وارنٹ پہلے ہی جاری ہیں۔ بھارت پر ٹیرف، پاکستان سے ڈیل، معاشی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ کہا امریکہ اور پاکستان مل کر اپنی تیل کے ذخائر تلاش کریں۔ دونوں حکومتیں مل کر تیل تلاش کرنے والی آئل کمپنی کا تعین کریں گی۔ ہو سکتا ہے پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کر سکے۔ امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹریڈ ڈیلز پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ بہت سے ممالک ٹیرف میں کمی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि तजारती मुआहदा की हतमी मंजूरी में क़यादत का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वसअत देगा। मुआहदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देगा। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तजारती नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहदे से बाहमी टैरिफ कम होगा। पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के है। ट्रंप ने भारत और रूस की मैशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनीज ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मैशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी मीडिया का कहना है कि महकमे खारजा ऐसी 20 कंपनीज पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। अमरीका की जानिब से नई पाबंदियों की ईरान की जानिब से शदीद मजम्मत, गैर कानूनी, जालिमाना और ईरानी कौम के खिलाफ खुली दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके की आफत ज़दा करार। सबसे ज्यादा तबाही जिला दियामर में हुई, जहां 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान हुआ। 22 गाड़ियां सैलाब में बह गई। तर्जुमान जीबी का कहना है कि सैलाबी तबाहकारियों से 10 अफराद जाँ भाग हुए। 10 से 15 सयाह लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मुतासरीन में खैमे, कंबल, अशिया खुरनोश की तकसीम भी की जा चुकी है। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। PDMA ने गुडूर सखर बिराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, खरीदो फरोख्त खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का ताहाल फैसला नहीं हो सका। मुलाजमीन ने हुकूमत से 29 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज मांग रखा है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन 5217 हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाजमीन को फारिग करने के बजाय दीगर इदारों में एडजस्ट करने का मुतालबा भी कर दिया। इदारे की बंदिश और 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। कहा कि ये इदारा 55 बरसों से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा है। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने गरीब तबके को सब्सिडी फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। मुल्क भर के 3,800 स्टोर से माहाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होते थे। उनकी बरतरफी अफसोसनाक है। मुल्क भर में चीनी का बहरान, विफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में कर लिया। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी पर अहम इजलास। दरामदी चीनी, मार्केट कीमतों और सप्लाई से मुतालिक अहम निकात पर गौर। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों के इस्तेहकाम और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा कि सारिफीन के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी अरसाल कर दी। नए गैस सार्फिन को दरामदी गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे, जिसकी फीस कुदरती गैस कनेक्शन से कई गुना ज्यादा होगी। नए कनेक्शन की फीस 41,000 रुपए तक होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी। कीमत 215 रुपये 36 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,541 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, जबकि जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे थी।
पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में माउन साबित होगा। सी पैक माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। ईरानी मीडिया का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 24 घंटे में मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग के इमदाद के मुंतज़र लोगों पर गोलियां बरसा दी। वहशियाना हमलों में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाए क़िल्लत से 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई, जबकि 1,47,089 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार ने गजा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। सेहोनी बर्बरियत में 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। सिला मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में अमन बहाल और कराची की रौनकें वापस ले आए हैं। ट्रांसपोर्ट, फराहमियाब, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। सनती तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर सराहा।